वेल चाहे आप एक नीट एस्पिरेंट हैं, चाहे आप एक एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, या फिर आप एक नीट पीजी एस्पिरेंट हैं, या फिर आप एक मेडिकल एजुकेटर हैं, या फिर आप एक वो इंसान हैं जो ये जानना चाहते हैं कि इंसानी शरीर के अंदर होने वाली गतिविधियां होती कैसे हैं, तो शरीर के अंदर क्या है, तो ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए है। प्रोफेसर रवि से हमने बहुत सारी बातें करनी हैं, तो इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सर, जैसे ही हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो जो एक चीज़ जहन में आती है दैट इज़ अबाउट कैडावर एंड थिक वेरी बिग मेडिकल टेक्स्ट बुक्स। व्हाट इज़ एनाटॉमी फॉर यू सर? I feel that it is a very important subject. Why it is so? Because when you see this medicine, the complete medical science, it depends on anatomy. In other Right. words, we say that this anatomy is the foundation of the medical science. Because either आप सर्जन बनना चाहते हैं, रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, एनेस्थेटिस्ट बनना चाहते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएं, बट until and unless you are well versed with the anatomy, you cannot become a good doctor. कहते हैं परिंदों को मंजिल मिलेगी ज़रूर, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर कुमार सतीश रवि का, जो कि एक वर्ल्ड फेमस ऑथर, एक नोटेड एनाटॉमिस्ट, एक रिसर्च स्कॉलर और एक बहुत ही बेहतरीन एजुकेटर हैं, जिन्होंने एनाटॉमी को न केवल पढ़ाया है बल्कि दिल से जिया है। तो आप सब लोग मेरे साथ इस मंच पर उनका स्वागत कीजिए। नमस्कार सर, विश यू अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। Thank you so much, sir, for the wonderful introduction. I'm indeed very much honored. मेरा प्लेजर है सर, मैं कहूँगा ये सौभाग्य है मेरा कि आप हमारे इस मंच पे आए और आज बहुत सारी बातें आपसे करनी है सर। शुरुआत मैं आपकी एकेडमिक जर्नी से करना चाहूँगा सर। Right, sir. So when we talk about the school life, मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो सैनिक स्कूल तिलिया से हुई क्लास 10 तक, एंड उसके बाद मैं +2 जो था इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था, वहीं से +2 किया। उसके बाद मैंने MBBS किया श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर से, एंड देन आई मूव टू पौंडीचेरी, जिपमर पौंडीचेरी। फ्रॉम देयर आई डिड माय MD एनाटॉमी। ग्रेट। उसके बाद मैंने कई सारे इंस्टीट्यूशंस में काम किया, लाइक सफदरजंग से हमने वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में है वहाँ से सीनियर रेजिडेंसी किया, एंड देन आई मूव टू सेंट लूसिया नॉर्थ अमेरिका। वहाँ मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट काम किया। देन since I have been trained from the pre-med institute like Jipmar Pondicherry, I always wanted to serve my country, though Great. because of some reasons I went to abroad. But when I got an opportunity to come back to India through this AIIMS, I appeared in the interview and I got selected, and then I joined AIIMS Rishikesh as assistant professor. At AIIMS Rishikesh, हमने since inception I developed that institution as assistant professor, associate professor, additional professor. I have been into the administration, like I worked there as assistant dean academics, sub dean academics, additional proctor, then even assistant controller of examination. So what you see there at AIIMS Rishikesh during the tenure of Professor Ravi Kant, I took care of academics and most of the courses under his leadership, and Dr. Surekha Kishore, who was the dean academics at AIIMS Rishikesh, we started the courses there. I served at AIIMS Rishikesh for almost 11 years, and then I joined AIIMS Gorakhpur as professor and head. There I served almost 1.5 year, you say, and recently last year I joined at National Institute of Medical Sciences and Research, Jaipur. There I'm serving as a professor and head, and I served as additional principal as well. So ये अभी है. Apart from that, as you mentioned, I have a keen interest in research and publication. I'm the vice president of the Society of Clinical Anatomists, and then I'm taking care of the official publication of this society as editor in chief. I
started that journal since 2020, though the journal was started in 2012, but I took over as editor-in-chief in 2020, and then from that time only we were struggling. But now this is the one of the not one of the, you can say, the best journal of anatomy in Great. India. So this is all a little bit I can say about myself. वेल चाहे आप एक नीट एस्पिरेंट हैं, चाहे आप एक एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, या फिर आप एक नीट पीजी एस्पिरेंट हैं, या फिर आप एक मेडिकल एजुकेटर हैं, या फिर आप एक वो इंसान हैं जो ये जानना चाहते हैं कि इंसानी शरीर के अंदर होने वाली गतिविधियां होती कैसे हैं, तो शरीर के अंदर क्या है, तो ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए है। प्रोफेसर रवि से हमने बहुत सारी बातें करनी हैं, तो इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सर, जैसे ही हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो जो एक चीज़ जहन में आती है, दैट इज़ अबाउट कैडावर एंड थिक वेरी बिग मेडिकल टेक्स्ट बुक्स। व्हाट इज़ एनाटॉमी फॉर यू सर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनरल परसेप्शन जो है एनाटॉमी के बारे में वही है कि कैडेवर है, बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स, दे आल्सो फील दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। बट जहाँ तक मेरी बात है, आई डोंट थिंक दैट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। अब इनफैक्ट आई फील दैट it is a very important subject. Why it is so? Because when you see this medicine, the complete medical science, it depends on anatomy. In other Right. words, we say that this anatomy is the foundation of the medical science. Because either आप सर्जन बनना चाहते हैं, रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, एनेस्थेटिस्ट बनना चाहते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएं, बट until and unless you are well versed with the anatomy, you cannot become a good doctor. So Right. it is so important that even if you talk about the surgeon, if they need to operate a patient, until and unless they know the structure, right, they cannot operate. Suppose if they are not well versed with the liver and they have to give incision over here, then it will lead to something, you say, disaster. True. Similarly, when you talk about radiologist, until unless they are well versed with the anatomy, what images they will interpret? They cannot. Right. Similarly, when you talk about anesthetists, suppose they have to do some procedure, right? They need to know the anatomical landmarks. So I can say that for me, anatomy is not just the study of the structures or the organs, but slowly means though some people say that it is a dead subject, but for me, when you talk about, I see it as a most romantic subject, I can say. Great. Why it is so? Because the more you study anatomy, you will develop that love for the anatomy, because it's a vast subject, and as I mentioned that you cannot imagine medical science without anatomy. अच्छा सर, आपका रुझान, आपका इंटरेस्ट एनाटॉमी की तरफ कैसे हुआ? व्हाई डिड यू चूज एनाटॉमी? क्या कोई ऐसी शख्सियत रही जिनका आपके ऊपर बहुत प्रभाव रहा, कोई आपके मेंटर या कोई ऐसे शख्स, आपके टीचर जिन्होंने इन्फ्लुएंस करा आपको? Very, very valid, very important, and I can say the interesting question you have asked, sir. See, initially when I say I never wanted to become a doctor. From the beginning, when you talk about, I always aspired to become a civil servant. You know, those people who are from either, you say, the Uttar Pradesh or Bihar, Right. usually they think that I have to become a civil servant. When I was in Sainik school, Tilea, I also used to think that way only. And for that only, since I was in Allahabad, I was doing my, you say, the intermediate +2 from GIC. I took admission in Allahabad University. After giving this board examination of +2, because most of my friends, they joined some coaching institute for the medical entrance examination. Even I asked my father that I would like to join some of the coaching institute. Then my father said कि बेटा तुम्हें तो मेडिकल में जाना नहीं है, you are never interested in becoming a doctor, then why you would like to join some coaching institute for medical? I was fully convinced by the my father. But fortunately, you say, or unfortunately, the day I took admission in Allahabad University, on the same day this PMT result came,
अच्छा, and I was selected for the MBBS seat. Then my father's version changed, and he said, even if you wish to become a civil servant, right, I would suggest that you join MBBS, and then if you will have the MBBS background, definitely in the interview of the UPSC, you will have a upper hand. And that's how, because in our time we cannot say anything to our father, because we understand that whatever the parents will think for us, that will be best for us. So keeping those things, I joined MBBS, and then as soon as I finished my internship, I appeared for the postgraduate entrance examination, and I got JIPMER Pondicherry. Now there in the counseling, I was thinking that which subject to choose, because I was when I was in the first year of MBBS, and throughout MBBS you say only the first year teachers you will remember, right, because they will be very close to you. Once you will go to the second MBBS, third MBBS, teachers will be least bothered because they will be very busy, right? And when you are in the first year of MBBS, all the teachers will be knowing the students individually. And definitely because of that, I can say that when I was in the first year of MBBS, Dr. Binod Kumar sir was there, and now he is no more. He was a great teacher, and during the counseling, I chose anatomy because I was so much impressed with his aura, with his personality, the way he used to teach. Most of the students, they were very fond of him. So keeping those things in mind, I chose anatomy because I never wanted to continue anatomy. I thought, okay, second time I will give the NEET PG. That time it was not PG, NEET PG. It was All India PMT, something was there. So because we were 5 brothers and sisters, and my father was a teacher, I never wanted that after completing MBBS also I should be dependent on my father. तो मैं MBBS के बाद पापा से पैसा नहीं लेना चाहता था, and because of that I thought okay, वहाँ PG में स्टाइपेंड मिलेगा तो उससे चलेगा, और फिर सेकेंड टाइम मैं entrance exam दूंगा. So I'll definitely, whoever pursue MBBS, they wish to become either you say cardiologist बनना चाहते हैं या neurosurgeon बनना चाहते हैं, or something like that, right? So keeping this financial status only, you say, I chose anatomy. But when I joined JIPMER Pondicherry, it's a institution of national importance. It's a premier institute. So many courses were there. I never got time to prepare for the PG. Right. And my mentor, my guide, Dr. Sohinder Kaur ma'am was there. She motivated that since you have joined, I would suggest better you continue. And when I started anatomy at JIPMER, then I started loving that subject, and that's how I continued. And then after completing this post graduation, I joined the different institutions, and I think I didn't choose anatomy. Anatomy chose you. In other words, I can say that anatomy chose me. So that's how wonderful, I continued, sir. and now I love anatomy. That's wonderful, sir. ओके सर, ये तो रही आपकी एनाटॉमी को लेकर के जो आपके दिल में प्रेम है और किस तरह से एनाटॉमी ने आपको चुना. हाउ डिड यू एंटर इनटू द फील्ड ऑफ राइटिंग? आई हैव सीन यू हैव contributed to so many wonderful international level textbooks, and you are very active into writing research articles also. ये कैसे हुआ सर? I tell you, when I was in सैनिक स्कूल, तो उसी समय से मुझे लिखने की हैबिट था. माई आर्टिकल्स यूज्ड टू बी पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर, फ्रॉम माई स्कूल डेज ओनली. सो दैट राइटिंग हैबिट वाज सिंस इंसेप्शन. यू से that my hobby was there. I was very fond of the same thing what you asked. When I was in Allahabad, I was preparing, and that time my father told me कि बेटा इलाहाबाद कवियों का क्षेत्र रहा है, कवि मत बन जाना. Right? So that time just I took break, and I then those in +2 you say I stopped writing, but because that passion was there for writing. Again, when I came into the medical institution, and when you talk about any medical institute, there will be 3 pillars. When you talk about at least the institution of national importance, वहाँ एक तो मेडिकल एजुकेशन हो गया, एकेडमिक्स, दूसरा पेशेंट केयर, और तीसरा रिसर्च.
right? So research is one of the pillar of these institutions. So that's how I started writing, because in India, when you say still we are lagging behind in research, right? But why people do research when you talk about India? Basically, 90% I can say, because it is mandatory for the promotion, they do research, Right. right? So हम कौन promotion नहीं चाहता है? बिल्कुल. So keeping those things in mind, I started doing research work and I started publishing, and that's how when I was attending one ceremony, book launch ceremony of my teacher, Dr. Vandana Mehta and Dr. R.K. Suri, and that time only it clicked कि if my teachers can write, why not I can write? And that's how this Wolters Kluwer, they approached me for one of the most reputed book of neuroanatomy, which is otherwise called as Bible of Neuroanatomy, Snell's Clinical Neuroanatomy, and I got an opportunity to edit that book, and I feel that I am honored, I am blessed that the book, which is read globally, have been edited by me. बिल्कुल सर. मतलब आपने इतने खूबसूरत शब्दों में कहा द बाइबल ऑफ न्यूरो एनाटमी, दैट इज स्नेल्स क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी. सर एक चीज़ मैंने देखी है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ टीचर, आपने भी ये चीज़ ज़रूर महसूस करी होगी कि ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स अब जिस तरह के स्टूडेंट्स आ रहे हैं आपके पास मेडिकल कॉलेजेस में, उनका जो नज़रिया है पढ़ाई को लेकर के, और आज से अगर हम कुछ वर्ष पीछे जाते हैं तो काफ़ी डिफरेंस रहा है. आपने पर्सनली क्या अनुभव करा है इस चीज़ में? Definitely being a teacher means I have seen, I'm teaching since 2006, right? And I have came across the various students. I have taught the students of JIPMER, I have taught the students of, you say, Safdarjung, then I have taught the students of AIMS Rishikesh for 11 years almost at AIMS Gorakhpur. So what I can say, that the initial stages means previously the students are same, but because earlier the students, they search for the knowledge, information. They used to go to the library, Right. Right. So those infrastructures, either you say the resource material and everything, was not readily available. Right now, you can see at the tip of the finger, you just press either in the cell phone or in the laptop, everything is available. Right. So the change, what I can say, that earlier they used to look for the knowledge, right? Nowadays, because of the resources available, enough number, you say n number of resources, the misinformation is going on among the students, and since it is readily available, the students are not valuing the way it should be valued. So that is one of the major difference what I feel, right? Because now it is the era of, you say, that technology. Every students, they have cell phone in their hand. Right. Any information they need to know, they'll just Google and they will have the information. But the thing is that those informations, right, those are not always peer reviewed information. So they get some kind of misinformation also, and on that only they build up. So that one of the sad part, you can say. ट्रू. राइट. सर, आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी पढ़ाया, आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाया, आपने 2 डेकेड से ज़्यादा हो चुके हैं आपको पढ़ाते हुए, तो कुछ आपको डिफरेंस नज़र आया स्टूडेंट्स हु आर इनटू द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और द स्टूडेंट्स हु आर इनटू द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स? See, everywhere the students will be same, right? Now it depends on the individual, that how much passionate they are, how much they are giving their time and energy in learning the subject, whether it is government or it is a private medical college. Some of the students will be too good, some of the students will not be so good, right? But it is the duty of the teacher, because nowadays we don't say teacher, we say the facilitator, right? So the intelligent students, whoever are there, right, they will read themselves, they will do the self-study, they can do wonders. It is the duty of the teacher to focus on those students who are somehow not able to do so well, because once they have cleared this entrance examination, it means they have that optimum level. उसका लेवल है वो. अब डिपेंड करता है कि कई बार बच्चे जो होते हैं वो आते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं, बिकॉज जो नीट यूजी एग्जामिनेशन होता है, इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन यू सो से.
तो जब उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आते हैं एंड व्हेन दे स्टार्ट रिलैक्सिंग इन द मेडिकल कॉलेज, then the result will not come the way it should come. Right. So everywhere the students, you will get all kind of students. It's not that only the students who are in government institutions they are doing well, and those students who are in private medical colleges they are not doing so well. Definitely there are reasons, because if you see in the government institutions, because like when I will quote the AIIMS, there the creams are there. Right. So when the creams are there, definitely they will do much better, right? Only they need to be shown the track. And when you say the private medical colleges there where the low rankers are there, so accordingly the performance may be different. But otherwise when we talk about the students, I feel that students are all same. It depends on the hard work, right? How much they put, they can excel, right? It's nothing to do with the initial ranking and all. It depends on how much effort they are putting in when they join the medical college. राइट सर। सर अक्सर मैं ये जो सुनता हूँ बच्चों से कि हमने बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हम एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। अगर हमें एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है जो रिमोटली लोकेटेड है या जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो सर इस बात से कितना फ़र्क पड़ता है कि एक बच्चा किस कॉलेज से MBBS करके निकलता है? क्या एक लंबे समय में इस बात पर फ़र्क पड़ेगा कि वो एक बेहतरीन डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा? देखिए, when I say about the institutions, definitely it has some age, right? Like when you talk about AIIMS Delhi or when you talk about JIPMER Pondicherry, right. There the students will be more exposed. चूँकि जैसे मैं SKMCH से MBBS किया था, तो वहाँ मुझे USMLE लैब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. Right. In my days I am talking. Nowadays because internet is there, all the informations they are having, right. So it hardly matters. What matters, as I said, कि आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में हैं, आपके पास MBBS की डिग्री मिलेगी, राइट? नाउ एज आई सेड कि व्हेन आई टॉक अबाउट द मेडिकल साइंस, इंटेलिजेंसिया डू मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज द हार्ड वर्क, इज द कंसिस्टेंसी. इवन इफ यू आर इंटेलिजेंट, राइट, एंड इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, इफ यू आर नॉट पुटिंग हार्ड वर्क, दैट इंटेलिजेंसिया विल बी वेस्ट, राइट? सो कमिंग टू योर क्वेश्चन कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्या फ़र्क पड़ेगा जहाँ, तो यदि स्टूडेंट्स इफ़ दे आर पुटिंग देयर हार्ड वर्क, टीचर्स विल बी देयर, दे विल शो द ट्रैक, बट इफ दे आर हार्ड वर्किंग, दे आर पुटिंग देयर एफर्ट्स, दे कैन एक्सेल फ्रॉम एनीवेयर. आई हैव सीन that students from the remote medical colleges, they are scoring better, they are getting better ranks than those who are studying in the institution of national importance. So what I perceive कि आप यदि मेहनत करेंगे तो आप कहीं भी रहेंगे, you can excel, nobody can stop you. It all depends your hard work, your passion, your determination. If you are determined, where there is a will, there is always a way. डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैंने सुनी है और बच्चों से मतलब बार बार ये बात सुनी है कि हर मेडिकल एस्पिरेंट को, मेडिकल स्टूडेंट को अपने जीवन का जो पहला वो क्षण है जब उसने कैडावर को पहली बार देखा डाइसेक्शन हॉल में, वो जीवन भर याद रहता है. आप बताइए, क्या आपको याद है? बिल्कुल. और मैं बताऊं कि जैसे फर्स्ट MBBS में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री. तो बायोकेमिस्ट्री तो इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ यू से द केमिस्ट्री जो प्लस 12th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं. सिमिलरली फिजियोलॉजी भी वो 12th क्लास में पढ़ते हैं, वो उसी का कंटिन्यूएशन है. बट एनाटमी जो होता है वो कम्प्लीटली न्यू होता है. सारे टर्म्स जो हैं वो कम्प्लीटली न्यू होता है, जो ड्यूरिंग द स्कूल लाइफ दे हैव नॉट कम अक्रॉस थ्रू दोज टर्मिनोलॉजीज. तो जब हम डिसेक्शन हॉल की बात करते हैं आपके क्वेश्चन पे, तो दैट इज़ द एरिया, वहाँ हमें फर्स्ट टाइम डॉक्टर होने का जो फीलिंग होता है वो आता है, एहसास आता है. तो जब आप देखेंगे डिसेक्शन हॉल, ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस में डिसेक्शन हॉल में लिखा रहेगा कि टेम्पल ऑफ नॉलेज वेयर डेड टीचेस द लिविंग. तो जब हम इंटर करते हैं तो देयर विल बी लॉट ऑफ एक्साइटमेंट विल बी देयर, क्यूरियोसिटी विल बी देयर, कि चूँकि कभी इमेजिन नहीं किया था कि हाँ हम जाकर के कैडेवर से इंटरेक्ट करेंगे एक तरह से. तो जब कई लोग होते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, हमारे बैचमेट्स भी में भी हुआ था कि 1-2 बच्चे फेंट हो जाते हैं देख करके, रहता है वो. तो हम जब मैं एडवाइस करता हूँ
हमेशा अपने बच्चों को भी कि जब भी आप डिसेक्शन हॉल जाएं तो हमेशा आपको ब्रेकफास्ट करके जाना चाहिए। मैं याद करता हूँ जब मैं 1999 में फर्स्ट MBBS का स्टूडेंट था, आई इंटर्ड इनटू द डिसेक्शन हॉल एंड हमारे टीचर्स वहाँ बैठे हुए थे। आई वॉज द मेन डिसेक्टर ऑफ माई बैच। मुझे डिसेक्शन करना बड़ा अच्छा लगता था, तो आई वॉज लिस्ट स्केयर्ड। मैं तो आराम से गया, डिसेक्शन किया और मतलब वी फील लाइक अ डॉक्टर। उस समय पहली बार लगा कि हाँ, व्हेन आई वाज डिसेक्टिंग ऑन द वेरी फर्स्ट डे माय टीचर टोल्ड कि सबसे पहले यू गो एंड बो इन फ्रंट ऑफ द कैडेवर, राइट, बिकॉज यूजुअली कोई आप किसी से कुछ मांगेंगे तो दे विल बी स्केयर्ड ऑफ डोनेटिंग, राइट, सो यू मस्ट रिस्पेक्ट द कैडेवर बिकॉज he has donated his body, right, so that gratitude you must express. True. So everyone we bowed in front of the cadaver, right, we expressed our gratitude with lot of respect because that is what the very first thing we learned in the dissection hall, that expression of gratitude कि कोई अपना पूरा संपूर्ण शरीर जो है दान कर दिया है जिससे कि हम अपने समाज में एक अच्छे डॉक्टर्स दे सके समाज को। तो मुझे नहीं लगता है कि देह दान से श्रेष्ठ कोई दान है, राइट। तो वो एक्सप्रेशन जो ग्रैटिट्यूड का था, दैट ओवरपावर्ड एंड वी बिकेम सो हम्बल एंड यू नो ह्यूमिलिटी कि भाई इन पे हम सारा डिसेक्शन करेंगे और सीखेंगे और एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। तो दैट फीलिंग इज स्टिल देयर एंड वी हैव नॉट फॉरगॉटन बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट नॉलेज, वो हमें एक टीम वर्क भी सिखाता है, एक एम्पैथी हो गया, राइट, ग्रैटिट्यूड हो गया, कई सारे चीज़ वहाँ डिसेक्शन हॉल में हम सीखते हैं। राइट सर, इसीलिए कैडावर को आपका पहला टीचर कहा जाता है? डेफिनेटली, बिकॉज जैसे हम लोग जब छोटे बच्चे होते हैं तो स्कूल में जब हम जाते हैं तो कहा जाता है हमें कि माँ जो होती है पहली टीचर होती है, पेरेंट्स जो कहते हैं। उसी तरह से जो मेडिकल साइंस होता है, हमने कहा कि एनाटॉमी इज़ द फाउंडेशन ऑफ द मेडिकल साइंस। तो जो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं वो कैडेवर पे सीखते हैं, तो उसे हम कैडेवर को हम लोग साइलेंट टीचर या फर्स्ट टीचर कहते हैं बिकॉज एवरीथिंग वी लर्न। एंड आज के एज में भी जितना भी टेक्नोलॉजी हो, वर्चुअल डिसेक्शन टेबल्स हैं, VR है, लाइक ब्रह्मर्षि एंड ऑल, सो मेनी थिंग्स आर देयर, complete anatomy table is there, but nothing can replace this cadaveric dissection. That is the ultimate. They can be a supplement. लेकिन cadaveric dissection का कोई replacement नहीं है, right? So that's the reason so many things we learn from the cadaver. हम उन्हें first teacher या silent teacher कहते हैं। एक और सर बच्चों में जिज्ञासा रहती है कि जो कैडावर्स आपके पास आते हैं डिसेक्शन हॉल में या जो डेड बॉडीज आती हैं वो कहाँ से आती हैं? अभी जैसा हमने कहा कि शरीर दान श्रेष्ठ दान होता है, तो हम लोग बॉडी डोनेशन प्रोग्राम चलाते हैं। हर इंस्टीट्यूशन में बॉडी डोनेशन प्रोग्राम होता है। तो जितने भी जो समाज में हम लोग जैसे मीडिया की बात करते हैं, अभी रिसेंटली मैं एक मूवी देखा था, सिकंदर, सलमान खान की मूवी है। व्हाई इट अट्रैक्टेड दिस मूवी, माय अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट मूवी बिकॉज द थीम ऑफ दैट मूवी वाज वेरी पर्टिनेंट। उस मूवी में बॉडी डोनेशन को ये किया गया, उनकी जो एक्ट्रेस थी उसने अपने डिफरेंट ऑर्गन्स को डोनेट किया था, राइट। सो द मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्रिएटिंग अवेयरनेस। समाज में जो अवेयरनेस होता है क्रिएट करता है जिससे कि लोग मोटिवेट हों अपने बॉडी को डोनेट करने के लिए, अपने ऑर्गन्स को डोनेट करने के लिए। और जो लोग अपने मरणोपरांत अपने बॉडी को डोनेट करते हैं तो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में पहले जैसे अभी सपोज कोई 70 ईयर्स के हैं, 60 ईयर्स के हैं, वो डिपार्टमेंट में जाते हैं, एनाटॉमी डिपार्टमेंट में एक फॉर्म फिल करते हैं। तो जब उनका देहांत होता है तो हमारी तरफ से हमारा एम्बुलेंस या जो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होता है जाते हैं और हम लोग पूरे आदर सम्मान के साथ अपने डिपार्टमेंट में लाते हैं। वहाँ हमारे जो बच्चे होते हैं वो कैडेवरिक ओथ लेते हैं, ठीक है, जो बॉडी डोनेट करते हैं उनका, फिर उनके नाम पे हम लोग ट्री प्लांटेशन करते हैं और पूरी प्रक्रिया जिससे कि मतलब जो भी उनकी इच्छा रही है, जो उनके नियर एंड डियर वंस रहे हैं, वो सारे चीज़ हम लोग फॉलो करते हैं कि किस तरह से जैसे उनका अंतिम संस्कार भी करना हो डिसेक्शन के बाद, तो जो वो कहेंगे वट एवर दे विल फील इन द फॉर्म वी ट्राई टू डू दैट। तो
बॉडी डोनेशन प्रोग्राम के तहत तहत। हमारे यहाँ बॉडी आती है, उसी बॉडी पे बच्चे डिसेक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं और एक अच्छा डॉक्टर समाज को मिलता है। राइट। और सब जैसे मेडिकल के फर्स्ट ईयर में जब बच्चे आते हैं डिसेक्शन हॉल में, तो आप उन्हें ग्रुप्स बना करके कैडावर अलॉट करते हैं, और जब उन्होंने अपनी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई ख़त्म कर ली है तो उसके पश्चात फिर आप उस कैडावर का या डेड बॉडी का मतलब व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, फिर क्या किया जाता है? तो जैसे बच्चे फर्स्ट ईयर में हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं, जैसे हर टेबल पे 20 बच्चे होते हैं या 15 बच्चे होते हैं, तो 15 बच्चों में हम एक बॉडी देते हैं डिसेक्शन के लिए। तो जब डिसेक्शन एट द एंड ऑफ द ईयर कंप्लीट हो जाता है तो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को हम सारे मेडिकल कॉलेजेस में बरियल ग्राउंड होता है, तो जैसे डिफरेंट पार्ट्स हुए उन पार्ट्स को बरियल ग्राउंड में हम लोग बरी कर देते हैं, जिससे कि आफ्टर अ फ्यू ईयर्स वी कैन गेट द बोन्स ऑल्सो, राइट, और वो हम बोन्स रिट्रीव करते हैं। या यदि किसी जो बॉडी डोनर थे उनकी कोई अंतिम इच्छा रही थी कि हाँ भाई डिसेक्शन के बाद या रिसर्च के बाद हमें जला दिया जाए, दाह संस्कार कर दिया जाए, तो जैसा जो इच्छा जाहिर करते हैं हम लोग उसी तरह से उसको फॉलो करते हैं। अदरवाइज यूजुअली इन द बरियल ग्राउंड वी बरी देम एंड देन इवन फ्रॉम द डेड बॉडी यू से डिसेक्टेड पार्ट्स जो होते हैं उससे हम बोन रिट्रीव करते हैं और उन बोन से फिर हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं। They study individual bones in the classes. राइट। सर कोई ऐसा अनुभव जिसने आपको बहुत डीपली टच करा हो रिलेटेड टू दिस, जो डोनर वाली बात आप कह रहे हैं या ब्यूरियल रिलेटेड बात जो आपने बताई, या किसी भी स्टूडेंट का आपको कोई ऐसा अनुभव याद हो जो उसका पहला दिन था डिसेक्शन हॉल में, कुछ आप शेयर करना चाहें? या अभी कुछ दिन पहले ही मैं जब वहाँ निम्स में एक बॉडी डोनेशन हुआ, जयपुर से उज्ज्वला जैन नाम की लेडी थी, उन्होंने मरणोपरांत अपना शरीर दान किया। उनके हस्बैंड आए थे और वो कैडेवरिक ओथ सेरेमनी में ही वाज गिविंग सच अ वंडरफुल टॉक टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, और लोगों को मतलब अपनी कहानी बता रहे थे कि कैसे वो दोनों एक साथ रहते हैं। क्योंकि हम मतलब मेरा भी ये मानना है कि सबसे ज़्यादा जो धर्मपत्नी की आवश्यकता होती है वो ओल्ड एज में होता है। राइट। जब उनका देहांत हो गया उनकी पत्नी का, तो अपनी वो सारी स्टोरीज जो उनके साथ अनमोल क्षण उन्होंने बिताया था, वो मुझे बता रहे थे कि उनकी क्या इच्छा थी और कैसे कैसे वो लोग समय बिताते थे एक साथ। तो दैट वाज अ वेरी टचिंग मोमेंट, एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग्स दे डिसाइडेड कि बॉडी डोनेट करनी है। और जैन साहब ने भी कहा कि मेरी पत्नी ने तो डोनेट किया है, मैं भी डोनेट करूँगा डॉक्टर साहब, और मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज में अच्छे डॉक्टर्स बने, और उसके लिए यदि हम कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों ना दान करें। तो दैट वाज अ वेरी मोटिवेटिंग एंड द इंस्पायरिंग एंड टचिंग मोमेंट कि लोगों में ये भावना है कि हम जाने के पश्चात भी अपना सब कुछ सर्वस्व जो शरीर है वो भी दान करके जाएं, जिससे कि हम समाज का भला कर सकें। तो ये जो टेम्परामेंट है दैट इज रियली इनक्रेडिबल। ग्रेट सर, बड़ी ही दिल को छू लेने वाली बात कही है सर आपने। एक स्टूडेंट को जो फर्स्ट ईयर में मेडिकल में आया है और डिसेक्शन हॉल में है, आप क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से, या आप उन्हें ये एडवाइस देना चाहेंगे क्या एथिकल वैल्यूज़ जो है उनमें ज़रूर होनी चाहिए जब वो एक कैडावर को डाइसेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल दे मस्ट एक्सप्रेस द ग्रैटिट्यूड। उनको ये समझ में आनी चाहिए कि जो उन्हें मिला है कैडावरिक डिसेक्शन के लिए, इन मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेज इवेंट अक्रॉस द वर्ल्ड लोगों को बॉडी नहीं मिल रही है डिसेक्ट करने के लिए, तो दे आर ब्लेस्ड, दे आर फॉर्चुनेट इनफ दैट दे आर गेटिंग द बॉडी टू डिसेक्ट, तो दे मस्ट एक्सप्रेस द ग्रैटिट्यूड। उनको ये समझ में आना चाहिए कि जितना अधिक से अधिक इसका फ़ायदा ले सकते हैं वो लें, डिसेक्ट करें, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को मिलता है, उसके बाद दोबारा उन्हें मिलेगा नहीं कैडावरिक डिसेक्शन के लिए। तो दे मस्ट हैव दैट ग्रैटिट्यूड एंड दे शुड यूटिलाइज, जितना अधिक से अधिक उस समय को यूटिलाइज कर सके सीखने के प्रति, वो होना चाहिए। और अभी रिसेंटली मैंने एक देखा था कि काफ़ी विवाद भी हुआ था कि दे यूज सम अनवांटेड वर्ड्स अबाउट दैट मस्ट बी अवॉइडेड, बिकॉज दे शुड मतलब उनको समझ में आना चाहिए कि ये इतना बड़ा दान है, लोग शरीर में दान कर रहे हैं जिससे कि लोग रिसर्च कर सकें,
मेडिकल एजुकेशन में एक अच्छे डॉक्टर समाज को मिल सके, तो वी मस्ट अप्रिशिएट एंड इनकरेज एंड मोटिवेट अदर्स सो दैट पीपल कैन डोनेट। ग्रेट सर। ओके, एक और जो चीज़ सर मैं बच्चों से अक्सर सुनता हूँ कि पूरे एमबीबीएस की इस जर्नी में फर्स्ट ईयर ज़्यादा मुश्किल है, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं फाइनल ईयर ज़्यादा मुश्किल है, तो ऐसा कुछ है क्या कि ये जो जर्नी है इसमें कौन सा ऐसा साल है जो ज़्यादा कठिन है और कौन सा ऐसा वर्ष है जो कंपैरेटिवली कम कठिन है? यूजुअली ये जनरली जैसा आपने कहा कि ये परसेप्शन है कि फर्स्ट ईयर डिफ़िकल्ट होता है, और फर्स्ट ईयर चूँकि ड्यूरेशन कम होता है और फर्स्ट ईयर में ही जो सब्जेक्ट आपने बताया एनाटॉमी, इसको कंसिडर किया जाता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज मैंने बताया कि यहाँ पे सारे टर्म्स जो हैं वो नए हैं, जो कभी उन्होंने सुना नहीं है, जैसे मीडियल है, लैटरल है, पोस्टीरियर है, एंटीरियर है, तो ये सारे टर्म्स जो हैं वो पहली बार सुन रहे होते हैं। तो डेफिनेटली जब तक वो टर्म्स से अवेयर होते हैं 3-4 महीना निकल जाता है, राइट। तो एंड एनाटॉमी में ही बहुत सारे ब्रांचेज हैं, जैसे एनाटॉमी में ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे एम्ब्रियोलॉजी हो गया, हिस्टोलॉजी हो गया, ग्रॉस एनाटॉमी हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, ऑस्टियोलॉजी हो गया, तो बहुत सारे ब्रांचेज हैं और ड्यूरेशन बहुत कम है, तो इसीलिए बच्चों को लगता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अदरवाइज ऐसा है नहीं। मैंने जैसा कहा कि यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे, इफ़ यू विल गिव योर टाइम with full dedication and passion, you can do wonders. There is nothing impossible. Right. तो बस वो जज्बा होना चाहिए बच्चों में कि हमें करना है, वो करेंगे। ठीक सर। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल ये है कि आपको इतने वर्ष हो गए पढ़ाते हुए, आपने इनन्यूमरेबल स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट करते हुए कुछ ऐसा फेवरेट एरिया या फेवरेट पार्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है पढ़ाना या समझाना? देखिए, एवरी ऑर्गन यू से इज़ इम्पॉर्टेंट। जब बच्चा, जैसे बच्चे भी कहते हैं कि सर सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है, तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि किस ऑर्गन को तुम अनइम्पॉर्टेंट कहोगे कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। भाई जैसे अभी टूथ एक हो गया हमें, तो अनबेरेबल पेन होगा, तो कि यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट पर्सनल चॉइसेस होते हैं लोगों के, तो सिंस मेरा जो इंटरेस्ट है न्यूरो एनाटॉमी में है, तो आई एंजॉय टीचिंग न्यूरो एनाटॉमी। तो वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स का होता है, बट अदरवाइज ईच एंड एवरी ऑर्गन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन द पेशेंट विल कम, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं था इसलिए हमने ये पढ़ा नहीं, तो मैं ये देखूंगा नहीं। तो बच्चे आते हैं एग्ज़ाम से पहले आएंगे कि सर आप जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें टिक कर दें जिससे कि हम वो पढ़ें। तो हम लोग कहते हैं बच्चों को कि बेटा मेडिकल साइंस में एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। कभी आप पेशेंट को ओपीडी में नहीं कहोगे कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं था तो हमने ये पढ़ा नहीं, तो आई कैन नॉट ट्रीट यू। तो एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ग्रेट। एक और चीज़ सर मैंने देखी है स्टूडेंट्स में कि ड्राइंग को अवॉइड करते हैं। क्लास 11-12 में होते हैं जैसे बच्चे कि भाई हमें ड्राइंग बनाना बड़ा मुश्किल लगता है, तो क्या चल जाएगा काम बिना अच्छी ड्राइंग हुए, या इस चीज़ की हैबिट बनानी ही पड़ेगी, इसके बिना गुजारा नहीं है? हम लोग सर एनाटॉमी की बात जब करते हैं तो ड्राइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वाई ड्राइंग इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जब एनाटॉमी की किताबें देखते हैं, पढ़ते हैं, तो जब तक वो डायग्राम ड्रॉ नहीं करेगा वो एक दूसरे के स्ट्रक्चर का रिलेशंस नहीं समझ पाएगा, और जब तक वो रिलेशंस नहीं समझेगा, इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ मेमोराइजिंग द थिंग्स और द फैक्ट्स। तो जब वो रिलेशन समझेगा, देन दे विल अंडरस्टैंड द थिंग सब्जेक्ट बेटर, and then they will develop the concept, right? So I always say in anatomy, diagram is very, very important. You must learn to draw the diagrams, to draw the different organs, their relations, so that you will develop the understanding of the subject and you will develop a concept rather than just memorizing the things. तो diagram anatomy में तो बहुत important है, उनको इसलिए भी बनाना चाहिए जिससे कि वो सब्जेक्ट को अच्छे से समझ सके और एक कंसेप्ट डेवलप कर सकें, सो दैट विल हेल्प देम इन द फ्यूचर। राइट सर। आपने सर अपने इतने वर्षों में टीचिंग करियर में कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स देखी जो आप बच्चों को बताते भी हैं पर फिर भी वो करते ज़रूर हैं? मतलब हर साल आपके सामने कुछ ऐसे केसेस आते हों कि वो गलती बच्चा कर ही रहा है बार बार रिलेटेड टू एनाटॉमी? रिलेटेड टू देखिए, टू अर्न इज ह्यूमन
एंड टू फॉरगिव इट इज डिवाइन। बच्चे हैं, गलतियां करेंगे ही। हाँ, तो जहाँ बच्चे गलतियां करते हैं हम लोग उनको गाइड करते हैं डेफिनेटली। जैसे आप कभी कहेंगे, कितना भी बच्चों को कहें कि भाई डिसेक्शन हॉल में यू शुड कम इन द लैब दिस you say apron, right, lab coat, but there will be students who will not come. So we teach them how to hold the scalpel. तो कभी डिसेक्शन बॉक्स नहीं लाएंगे, डिसेक्टर जैसे बुक होते हैं, राइट, मैनुअल, तो वो नहीं लाएंगे। तो इट इज़ रिपीटेड बिकॉज एवरीथिंग पासिज फ्रॉम द सीनियर्स। तो जो सीनियर्स गाइड करते हैं वो सीनियर्स की बात ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं रेदर देन टीचर्स। क्योंकि सीनियर्स के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, वो उनको लगता है कि ऐसे ही निकल जाएगा, बट सिस्टम ऐसा नहीं है। बिकॉज आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स दैट डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Until and unless you are disciplined, you cannot become a good doctor. So we must be disciplined. Right. आजकल सर ये भी ट्रेंड हो गया है बिकॉज सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, बहुत जगहों पे लेक्चर्स जो है बहुत अवेलेबल हैं। सो बहुत से बच्चों को सर मैंने देखा है कि वो फर्स्ट ईयर में ही नीट पीजी की तैयारी भी करना शुरू कर देते हैं। आपका इसमें क्या कहना है कि क्या फर्स्ट ईयर में ही ये तैयारी शुरू कर देना चाहिए या अभी थोड़ा समय देना चाहिए बच्चे को? जहाँ तक मेरा मानना है कि दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग ट्रेंड विच इज़ सीन इन द सोसाइटी। इसका हो क्या रहा है कि जब बच्चे MBBS में होते हैं तो वो MBBS की जगह MD एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, PG की तैयारी करते हैं। जब वो MD कर रहे होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो DM या MCH की तैयारी कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि समाज को एक अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता है। वो थियोरेटिकली तो दे विल बी कॉम्पिटेंट इनफ, बट दैट स्किल्स व्हाट दे नीड टू लर्न, नीड टू डेवलप, दो स्किल्स आर मिसिंग। तो पहले आप याद होगा सर कि जब इवन कोई MBBS हुआ करते थे, दे यूज्ड टू बी वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी कॉन्फिडेंट। वो आप जाइए, वो आपको डायग्नोज करेंगे, वो ट्रीटमेंट कर देंगे। आज के डेट में आप MD MS के पास भी जाएंगे तो दे विल नॉट बी सो कॉन्फिडेंट। व्हाई इट इज सो? बिकॉज दीज थिंग्स आर देयर। MBBS में वो MD की तैयारी कर रहे होते हैं और MD में वो DM MCH की तैयारी कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली दे विल नॉट बी सो कॉन्फिडेंट and we will not be getting a good doctor. So I discourage that when you are in MBBS, you are preparing for the MD, or when you are in MD, from the beginning only you start preparing for the DMMC. At the end of the MBBS, you can start preparing, but not from the beginning. First, you try to learn the subject. Right. You develop that understanding. You develop that concept. बाद में आ जाएगा, क्योंकि आप जैसा मैंने कहा कि पहले की MBBS भी they used to be very confident. They used to treat all kind of diseases. आज के डेट में आप MBBS में वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं पाएंगे। इसका एक प्रमुख रीज़न ये भी है। ट्रू। अब सर बच्चों के पास बहुत सारी रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, या सबके पास, जैसा कि आपने कहा कि स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं। तो ऐसे में जो बच्चे का मेन जो फोकस है वो एक्चुअल स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से हट करके इन चीज़ों की तरफ आ गया है, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच क्या रखनी चाहिए बच्चे को कि वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सके? देखिए, टेक्नोलॉजी का इट्स एन एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। आप पहले हम लोग लेक्चर थिएटर में नोटबुक लेकर जाते थे, पेन लेकर जाते थे, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेक्चर थिएटर में टीचर्स डिस्कस करते थे वो हम अपने नोटबुक्स में इंटर करते थे। क्योंकि कोई भी जो टीचर आते हैं, 1 घंटे का लेक्चर होता है, तो वो 1 घंटे में बहुत सारे लिटरेचर्स, बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स का वो सारांश होता है। जो बच्चा 6 घंटे में पढ़ेंगे वो 1 घंटे में टीचर्स बताते हैं। लेकिन चूंकि जैसा आपने कहा कि बच्चों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल हैं, बट कई बार बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स से बच्चे पढ़ते हैं, राइट, दो थिंग्स आर नॉट पीयर रिव्यूड। तो वैसे चीज़ों से, वैसे रिसोर्सेज से बच्चों को बचना चाहिए जो कि पीयर रिव्यूड नहीं है। इससे क्या होगा कि दे विल हैव द रॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द टॉपिक। तो आई वुड सजेस्ट दैट इवन इफ दे आर गोइंग थ्रू द वेरियस रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, सो ओनली दोज रिसोर्सेज बच्चों को रेफर करना चाहिए जो पीयर रिव्यूड हैं, जैसे जर्नल्स हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं। तो उन टेक्स्ट बुक्स को, या इवन जो यूट्यूब चैनल्स हैं जो जिनको पता है कि हाँ ये पीयर रिव्यूड हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन सही मिलेगा, दे कैन रेफर। आई एम नॉट अगेंस्ट दीज यूट्यूब चैनल्स एंड ऑल, बट व्हाट आई एम सेइंग
कि जो पीयर रिव्यूड हैं, जहाँ इंफॉर्मेशन सही अवेलेबल हो, Right. जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, वहाँ से यदि वो रिसोर्सेज यूज़ करें देन इट इज़ बेनिफिशियल। ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट भी नहीं है बट दे आर पुटिंग द कंटेंट्स ऑन द यूट्यूब Right. एंड स्टूडेंट्स आर गोइंग थ्रू दोज कंटेंट्स, दैट विल बी डेंजरस। Dangerous. सो वैसे चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। एंड मुझे मेरी आप पर्सनली बात करेंगे तो मुझे तो टेक्स्ट बुक रेफर करना ज़्यादा अच्छा लगता है, जब तक वो जो कहते हैं ना पुस्तक का जो वो स्मेल जो नहीं आता एहसास है है, ना, बिल्कुल और अंडरलाइन करके पढ़ना, तो दैट आई एंजॉय। आप अभी भी पढ़ते हैं अभी भी पढ़ता हूँ। और मतलब when we talk about the lectures or anything, the teacher who is going without studying cannot take good lectures. तो एक अच्छा लेक्चर लेने के लिए आपको एक अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, right? Right. What you want to deliver, right? You should see the content, not everything whatever is there in your mind. Right. आप बस वोमिट कर दो, ऐसा नहीं। तो एनाटमी तो पढ़ाने के लिए आपको पढ़ना होगा, और अच्छा लेक्चर तभी होगा जब आप अच्छे से रिवाइज करके वेल प्रिपेयर्ड यू गो एंड टेक द लेक्चर्स, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको खुद फील हो जाएगा कि हमने लेक्चर अच्छा लिया या नहीं लिया। तो पढ़ना, मेडिकल साइंस, मैं हमेशा कहता हूँ कि ओनली दोज स्टूडेंट शुड ऑप्ट फॉर द मेडिकल साइंस हु हैज़ द हैबिट ऑफ लर्निंग, बिकॉज दिस इज़ अ regular learning process till the end of the life. I can say कि they should have the habit of studying, reading then only they will be updated. Right. Okay, सर अब आपसे कुछ थोड़े से पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा। आपने खुद इतनी बेहतरीन इंटरनेशनल लेवल की किताबें लिखी हैं, एडिट भी करी हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स में कंट्रीब्यूट करा है। आपकी अपनी पसंदीदा फेवरेट एनाटॉमी की टेक्स्ट बुक कौन सी है? जहाँ तक एनाटॉमी की बात है तो मेरी फेवरेट तो आई विल से स्नेल्स क्लिनिकल न्यूरो एनाटॉमी, विच इज़ मैंने कहा कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बाइबल ऑफ न्यूरो एनाटॉमी। आई लव दैट बुक एंड आई ऑलवेज व्हेनेवर आई रीड, एवरी टाइम आई रीड आई गेट टू नो समथिंग न्यू। ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार पढ़ लिया तो आई नो एवरीथिंग, ऐसा नहीं है। जब भी आप पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ आप नया सीखेंगे, कुछ लगेगा इतना, मतलब इट्स सो इंटरेस्टिंग टू नो। मेरे टीचर, मुझे याद है कि जब मैं जिप्पन में था फर्स्ट ईयर पीजी, सो पहला लेक्चर मुझे स्पाइनल कॉर्ड न्यूरो एनाटॉमी से ही लेने के लिए दिया गया था। तो मेरे टीचर की एक बात मुझे अभी भी याद आती है कि उन्होंने कहा कि ब्रेन को पढ़ाना और पढ़ना इतना डिफ़िकल्ट है तो लिखना कितना डिफ़िकल्ट होगा। तो दिस बुक व्हेन आई वाज एडिटिंग आई कुड अंडरस्टैंड दैट। तो आई लव दिस बुक एंड द मोर आई रीड द मोर आई लव दैट बुक। ग्रेट। मैं आप सभी ऑडियंस को एक किताब दिखाना भी ज़रूर चाहूँगा, और इनफैक्ट मैं खुद दीवाना हूँ सर की इस किताब का, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी हुई हैं, वंडरफुल डायग्राम्स, वंडरफुल फ्लो चार्ट्स, कलर्ड पिक्चर्स आपको मिलेंगी। एंड सभी मेडिकल एस्पिरेंट्स को मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। सर, ये तो हो गई आपकी फेवरेट एनाटॉमी की किताब। आपका अपना फेवरेट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कौन सा है? यदि पूरी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो मुझे इससे अच्छा कोई इंजीनियरिंग दिखता नहीं है। God has created such a beautiful body, and it is the most complex structure you can say. एक इंजीनियर जो है वो बहुत अच्छा ब्रिज बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, बट यू थिंक अबाउट द बॉडी एज ए होल। आप सोचिए, एंड एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। ऐसा नहीं है कि हार्ट मतलब सिंगल हैंडेड काम कर सकता है, बिना लंग्स के हार्ट नहीं करेगा। ब्रेन को यदि ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है थोड़ी देर के लिए, कॉन्शियस हो जाएगा, विद इन फ्यू मिनट्स द इंडिविजुअल विल डाई। तो इट इज़ मीन्स द मोस्ट ब्यूटिफुल and the most engineered structure is the human body. We must express our gratitude to the Almighty. उनसे बढ़िया इंजीनियर और इतना बढ़िया क्रिएशन कुछ भी नहीं है, नथिंग। सर, एनाटॉमी के टीचर्स के लिए आपने देखा है, आपने बहुत सारे टीचर्स भी तैयार कर रहे हैं अपने जीवन काल में, सबसे चैलेंजिंग टॉपिक क्या रहता है एनाटॉमी में पढ़ाने के लिए? एनाटॉमी में जैसा हमने कहा कि बच्चे यूजुअली जो है न्यूरो एनाटॉमी डिफ़िकल्ट उनको लगता है, और इसीलिए ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस में आप देखेंगे तो न्यूरो एनाटॉमी जो है
वो सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है, इसलिए कि दे विल बी वेल वर्स्ड, दे विल बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग, तो दे विल ईजिली अंडरस्टैंड, राइट. सो न्यूरो एनाटमी नो डाउट, जहाँ ब्रेन, अभी जैसा मैंने कहा कि ब्रेन को पढ़ना समझना डिफिकल्ट है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर. आप सोचिए, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ इंटरनल कैप्सूल का, बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें एक छोटा सा पोर्शन में भी इंजरी होगी, इट विल हैव अ वाइड स्प्रेड इफेक्ट. पूरा अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब सारा पैरालाइज हो सकता है बस एक छोटे से स्ट्रक्चर से इंजर्ड होने के लिए. तो हाउ सिग्निफिकेंट, हाउ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स इट इज. ट्रू. आप अपने किसी मेंटर को या अध्यापक को आज भी याद रखते हैं जिन्होंने आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला? दैट वे आई विल से कि मैं ब्लेस्ड हूँ. जैसे +2 में था मैं, तो डॉक्टर मानवेंद्र त्रिपाठी सर थे इलाहाबाद में. ही नॉट ओनली टॉट मी द सब्जेक्ट, ही गाइडेड मी, ही मेंटर्ड मी इन एवरी वे. उसी तरह से मैं MBBS में जैसा कहा कि डॉक्टर विनोद कुमार थे, डॉक्टर CB चौधरी सर, दे यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक सन. और वो हर विनोद कुमार सर के बारे में मैं एक इंसिडेंस यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, उसी डिसेक्शन हॉल का. एज आई सेड कि मैं डिसेक्शन किया करता था अपने बैच में, आई वॉज द मेन डिसेक्टर यू कैन से. तो बच्चे कुछ बंक करते हैं, नेचुरल होता है क्लास में, तो जो भी बंक करते थे वो मुझे कह देते थे कि रवि तुम अटेंडेंस लगा दिया करना, प्रॉक्सी जिसे कहते हैं. अच्छा. आज हम भी मना करते हैं अपने बच्चों को प्रॉक्सी लगाने के लिए. तो डॉक्टर विनोद कुमार सर वो अटेंडेंस ले रहे थे और बोले रोल नंबर 17. मैं खड़ा हुआ, बोला यस सर. फिर रोल नंबर 27 या 28 मैं फिर खड़ा हुआ, बोला यस सर. फिर रोल नंबर 33 फिर खड़ा हुआ, मैं बोला यस सर. तो 3-4 बच्चे उस समय बंक किए थे, उन्होंने बोला, मैं आई वॉज बिट इमोशनल, मैं सारे दोस्तों के लिए ठीक है लगा रहा था. 5वीं बार जब मैंने प्रॉक्सी मारा, तुम्हारे बैच की जो कुछ लड़कियां थी वो हंस दी. सर ने नोटिस किया, फिर सर ने बोला कि अच्छा रोल नंबर 17 कौन है? तो पिन ड्रॉप साइलेंस था. मैंने कहा कि 37 पे मैं उठा था, मैंने कहा था, बोला अच्छा तुम 37 हो, ओके रोल नंबर 17 कौन है? तो पिन ड्रॉप साइलेंस था. तो उन्होंने पूछा अच्छा कुमार सतीश रवि कौन है? तो मैं चुपचाप था. बोले अच्छा तुम कुमार सतीश रवि नहीं हो? तो मैं चुप रहा. बोले ठीक है, ये एब्सेंट है ना, इसका 1 महीने का अटेंडेंस मैं काट देता हूँ. तो उन्होंने मेरा 1 महीने का अटेंडेंस काट दिया. दैट वाज शॉकिंग. मैं क्लास के बाहर बाद में जाकर मिला सर से, बोले तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम बैच के मेन डिसेक्टर और डिसेक्शन करते हो और तुमको हम नहीं जान रहे हैं? 1 बार मैंने छोड़ दिया, 2 बार छोड़ दिया, 3 बार तुम प्रॉक्सी लगाए जा रहे हो. तो एंड देन आई बिकेम हिज फेवरेट स्टूडेंट. And it was he who motivated or inspired me to opt for anatomy during my PG. Then Dr. CB Chaudhary sir was there, who was principal also of pharmacology. तो वो अक्सर मुझे सैटरडे संडे को अपने घर पे बुलाते थे. We used to discuss, he used to guide me. Till date he is in touch. उसी तरह से when I was in MD जिपमर, डॉक्टर सोहिंदर कौर मैम, आज उनका बर्थडे भी है. Today in the morning I wished. So she always treated me like son. You will not believe, almost every other day she used to bring paratha in the department for me. कि हाँ मॉर्निंग में 8 o'clock जाना होता था, 8:01 हो जाता था, लेक्चर थिएटर का दरवाज़ा बंद हो जाया करता था. तो दैट वे मोस्ट ऑफन, मतलब आई यूज्ड टू मिस द ब्रेकफास्ट. जब मेरा बर्थडे हुआ करता था तो मैम के घर पे सेलिब्रेट होता था. तो आई ऑलवेज फील्ड लाइक अ होम एंड शी इज़ अ ग्रेट पर्सन, आई कैन से. So that way I am very much blessed that at every step I got a teacher, mentor who guided me, who taught me not only the subject but the lessons of the life as well. आप किस तरह के स्टूडेंट थे सर? बहुत ही स्टूडियस, बुकवर्म टाइप, या आप खेल कूद में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते? मैं I used to participate in everything, right? I am not that only bookworm or something like that. Because I have been trained in सैनिक स्कूल, तो वहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, राइट? एवरी वेदर इट इज़ यू से द कल्चरल एक्टिविटीज और द स्पोर्ट्स, एवरीथिंग यू शुड पार्टिसिपेट बिकॉज द मोटिव ऑफ द सैनिक स्कूल कैंडिडेट्स is to develop overall development, officer like qualities in each and every cadets you say. So I was like
we used to participate in each and everything. आपके जीवन की कोई ऐसी आदत सर जिसे आप अपनी सफलता का श्रेय देते हैं, कोई एक ऐसी हैबिट जो आपने शुरू से बना के रखी है और जिसने आपको सफल बनाया? मैं कहूँगा कंसिस्टेंसी। जैसा मैंने कहा कि इंटेलिजेंसिया इज़ गुड बट अनटिल अनलेस यू आर कंसिस्टेंट राइट एंड हार्ड वर्किंग यू कैन नॉट डू वंडर्स। तो ये जो मेरा मेहनत था, कुछ करने का जज्बा, कि बिकॉज माई फैमिली बैकग्राउंड आई वॉज नॉट फ्रॉम सो वेल टू डू फैमिली। सो मैं अभी बताता हूँ, जब मेरा MBBS में एडमिशन हुआ तो मेरे मम्मी को कुछ लोगों ने कहा कि अब तो आपका बेटा जो है वो अल्कोहल लेने लगेगा मेडिकल कॉलेज में। ये परसेप्शन है कि डॉक्टर्स दे स्मोक एंड टेक अल्कोहल ड्यूरिंग MBBS। तो मेरी मम्मी बहुत डरी हुई थी। तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं। बोले मम्मी यू डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल नेवर डू ऑल दोज थिंग्स एंड टिल दैट आई हैव नेवर टच्ड आइदर अल्कोहल और स्मोकिंग एनीथिंग। तो आई वाज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वाज फोकस्ड and I was determined that I have to do something in my life because my family background, it doesn't allow to involve in other things, right? So I was focused and I'm very hardworking. I will not say that I'm very intellectual or something like that, but I've always been very consistent and hardworking. And whatever I aspired for, by the grace of Almighty God, I have got that. Only because of the hard work, passion, and the dedication, you say. कोई रिग्रेट है सर जीवन का? जैसे आपने कहा आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते थे, तो अगर हम पन्ने पलट के पीछे जाएं, कोई ऐसी चीज़ जो आप बदल देना चाहें, ऐसा कुछ है? हाँ, हर जीवन के हर मोड़ पे कभी लगता है कि मुझे एक बार तो UPSC का एग्ज़ाम देना चाहिए था। बिकॉज व्हेन आई सी एज ए सिविल सर्वेंट you can decide the policy of the country, you can do better, right? Though I don't feel that I'm very happy with my present job and all, but yes, I always wanted to be a civil servant. And in future, if you say in the next birth, if I get an opportunity, I will definitely would like to write UPSC entrance examination. And I was damn sure that if I would have written, I would have got that. And but at the same time, I also think कि यदि मैं बना होता सिविल सर्वेंट तो बहुत ट्रांसफर्स हुआ करता मेरा, लाइक जैसे अशोक खेमका एंड ऑल का मैं देखता हूँ, तो आई एम ऑफ दैट टेम्परामेंट ओनली। सो दोज थिंग्स आर देयर। ग्रेट सर। कोई सपना जो अभी पूरा करना है आपने, अ ड्रीम येट टू बी फुलफिल्ड? God has been very kind to me. Whatever I have desired, I have got it. But जितना अधिक से अधिक इस समाज में हम कंट्रीब्यूट कर सके, whether it is academically, you say, or even in the society by different way of helping the people, helping the society, I would like to do that. Great. So what do you enjoy outside medicine? आपकी हॉबीज क्या हैं? हॉबीज लिखना, मीन्स कुछ कुछ लिखना, ये मेरी हॉबी है। एंड देन लिसनिंग म्यूजिक, लाइक गजल्स, जगजीत सिंह हो गए, या आप कहें गुलाम अली, ऑल दोज। मतलब पोइट्री इट टचेज। कहते हैं ना कि सरस्वती की आंखों से जब भी अश्रु की एक बूंद धरा पर गिरता है, एक कवि का जन्म होता है। तो ये बचपन से मेरा रहा था इंटरेस्ट पोइट्री का, और वो मैं कुछ गज़लों में, क्योंकि आजकल के जो सॉन्ग्स होते हैं उसमें वो लिरिक्स नहीं होता है, बस शोर है, बट दैट पोएट्री यू विल नॉट फाइंड। तो वो मैं उन गज़ल्स में ढूंढता हूँ एंड आई एंजॉय लिसनिंग दोज गज़ल्स। ग्रेट। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं सर? आप पूरा समय दे पाते हैं? बिकॉज मैं देख रहा था आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, आपके इंटरनेशनल विजिट्स भी रहते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? आई वुड लाइक टू मेंशन माय वाइफ, शी इज़ एन इमेंस सपोर्टर टू मी। शी, कभी कभी बात होती है तो वो कहती है कि जब हमारी शादी फिक्स्ड हुई थी तो उनके सीनियर्स कहते थे कि बहुत अच्छा चॉइस है तुम्हारा, बिकॉज ही विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर यू being an anatomist, he will not have any night duty or something like that. So but वो आज कहती है कि वो मेरा सारा परसेप्शन चेंज हो गया। Even being an anatomist, you are so busy that you hardly get time for. So that is there, that somehow means family time I'm giving to anatomy and the academics. Those things are there, but I must appreciate my wife, because until unless you are being supported by your soulmate, you cannot do anything. She is very supportive and she has always stood with me in all the thicks and things.
मेरे साथ हमेशा खड़ी रही है, और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ अपने आप को कि मुझे ऐसी अर्धांगिनी या धर्मपत्नी मिली है जो मेरे साथ मुझे हमेशा साथ देती है मेरे। ग्रेट। तनाव होता है सर कभी आपको? एनाटॉमी जैसा इतना टफ सब्जेक्ट पढ़ाना, कैडेवर्स के साथ डील करना, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की अपनी कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, सो आपको भी तनाव होता है, एंड हाउ डू यू डील विद स्ट्रेस? इट इज़ नेचुरल, struggles will be there, sometimes you will have some different time because life is not a bed of roses, राइट। है ना। हमेशा जीवन में आपको एक जैसा नहीं रहेगा, एक जैसा तभी उतार चढ़ाव नहीं आएगा, इसका मतलब यू आर डेड, राइट। तो देयर विल बी टाइम विल बी देयर, बट मैं हमेशा उन स्ट्रगल्स को, उन चैलेंजेस को आई टेक इन ए पॉजिटिव वे, बिकॉज द मोर यू विल स्ट्रगल, राइट, द मोर रिफाइनमेंट विल बी देयर, दैट विल बी लीडिंग टू योर ग्रोथ। तो आई टेक इट इन ए पॉजिटिव वे। जितने भी जो स्ट्रगल्स होते हैं, जो स्ट्रेस होता है, आप कैसे उसको हैंडल करते हैं, दैट विल मेक यू अ डिफरेंट पर्सन, राइट। तो आई टेक इट इन ए पॉजिटिव वे। आई enjoy accepting those challenges, and by the grace of Almighty God, you say, God has been very kind to me. You do it. ग्रेट। कुछ ऐसा वाक्य आप ज़िंदगी का बताना चाहें सर, जहाँ पे आपके स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने कुछ आपसे बहुत ही डिफरेंट किस्म का कोई सवाल पूछा हो, जिसने आपको भी थोड़ी देर सोचने के लिए मजबूर किया हो, और आपको लगा हो कि ये एक आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ पूछी है बच्चों ने? See, teaching is a two-way learning process. आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑन एवरी डे यू लर्न फ्रॉम द स्टूडेंट्स, व्हेन दे आस्क क्वेश्चंस, कुछ भी क्वेश्चंस या तो लेक्चर थिएटर में ड्यूरिंग लेक्चर दे आस्क, ठीक है, या डिसेक्शन हॉल में पूछते हैं। तो ये नहीं है कि स्टूडेंट सिर्फ आपसे सीख रहे हैं, आप भी स्टूडेंट से सीखते हैं, राइट। और कई बार कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो पूछते हैं जो हमें नहीं आता है, इट इज़ देयर, इट इज़ बहुत नेचुरल। तो उस समय वी से कि राइट नाउ I will refer this and then I'll get back to you. Right. Because I always feel कि किसी भी टीचर को, because no one knows everything, यदि आपको नहीं आता है तो एक गलत इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा है कि you refer the textbook, right? You refer the different literature, और उसके बाद आप बच्चों को बताएं, right? तो there will be sometimes, and I appreciate that will motivate you to prepare yourself in a better way, कि आप और अच्छे से पढ़ कर जाएँ, प्रिपेयर करके जाएँ, जिससे कि आप यू डिलीवर टू द स्टूडेंट्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। आप फिल्में देखते हैं सर? बिल्कुल। आई डू। लेटेस्ट कौन सी देखी? लेटेस्ट मैंने जो बताया अभी, सिकंदर। अच्छा। वो नेटफ्लिक्स या किसी चैनल पे आ रहा था, एंड फॉर्चुनेटली दैट हेल्प मी इन वन लेक्चर, बिकॉज मैं हैदराबाद गया था लेक्चर डिलीवर करने के लिए, वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे ही था, एंड दैट मूवी वाज ऑन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बिकॉज मैंने बोला वो सलमान खान की मूवी थी। हाँ जी। और उसमें एक्ट्रेस का देहांत हो जाता है और उसने अपने सारे ऑर्गन्स को डोनेट किया था। तो दैट वाज द रिसेंट मूवी। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द फेवरेट मूवीज, तो थ्री इडियट्स में कह सकता हूँ, आई एंजॉय दैट। आपने कबीर सिंह देखी है सर? हाँ, कबीर सिंह देखा हूँ। मतलब उसमें जिस तरह से उन्होंने पर्सोनिफाई करा है, मतलब वो सर्जन है लेकिन ही इज इनटू अल्कोहल एंड ड्रग्स एंड ऑल दिस थिंग्स, मतलब मुझे पर्सनली कहीं थोड़ा सा लगा कि यंग जनरेशंस को नेगेटिव वे में इफेक्ट कर सकता है। डेफिनेटली। और जैसा उसमें उन्होंने पोर्ट्रे किया है, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा होता भी नहीं है। बट ठीक है, इट्स अ मूवी जस्ट टू एंजॉय, राइट। दे हैव created that movie, but in real life it is not so. like this. ऐसा होता नहीं है। तो मूवी में तो आप कुछ भी आप कर सकते हैं, because that is for entertainment, but it plays, जो मूवीज होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने अभी सिकंदर का बताया कि भाई मीडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द सोसाइटी। तो आप वैसे मूवीज बनाएं जिससे कि एक पॉजिटिव मैसेज है समाज में, right, that motivate the people, right, to do something good rather than negative. तो और ये हम ये भी कहते हैं कि जो हमारा समाज होता है मूवीज में उसी को चित्रित किया जाता है, लेकिन that movie is there is a lot, it is far away from the truth, I can say. सर आपसे इतनी सारी बातें करी और बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला। मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे सभी ऑडियंस के लिए एक बार हमें बता दें कि कौन कौन सी बुक्स जो है वो आपने ऑथर करी हैं, एडिट करी हैं, और अभी आने वाले समय में आपकी कौन कौन सी बुक्स जो है मार्केट में आने वाली हैं। श्योर सर। तो
टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्टोलॉजी जो कि एल्जेवियर से पब्लिश हुई है, दैट आई हैव ऑथर्ड. उसके बाद फिर स्नेल्स क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी which has been published by this Walter Clover, has been edited by me. Then exam prep manual neuroanatomy, ये भी वोल्टस क्लोवर के द्वारा पब्लिश हुई है. ये 3 किताबें. उसके बाद आई हैव ऑथर्ड फ्रॉम स्प्रिंगर नेचर विजुअलाइजेशन इन न्यूरोएनाटॉमिकल साइंसेज, ये 4थी किताब. फिर आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रेज एनाटमी इंटरनेशनल एडिशन as a reviewer from India. And then by the grace of Almighty God, you say, the Nater's Atlas of Human Anatomy, another one of the masterpiece of, you say, anatomy. I have reviewed and I am in the advisory board as well. मेरी जो किताब आने वाली है, almost this month only it will be in the market. टेक्स्ट बुक ऑफ ह्यूमन एनाटमी, ये 3 वॉल्यूम्स में है. वॉल्यूम 1 में जो है वो अपर लिम एंड लोअर लिम होगा. जो वॉल्यूम 2 होगा उसमें एब्डोमेन, पेल्विस एंड थोरेक्स होगा. और तीसरी जो वॉल्यूम है उसमें हेड एंड नेक एंड ब्रेन होगा. ये वोल्टस क्लोवर के द्वारा पब्लिश हो रही है. तो दीज आर द बुक्स विल बी कमिंग दिस मंथ, एंड देन वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन अदर टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो, एंड आई एम श्योर दैट इट विल बी कमिंग सून. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट, National Journal of Clinical Anatomy, I'm the editor-in-chief of that journal. ये साल में 4 इसके issues आते हैं, and right now this is the best journal of anatomy as per Scopus and the SJR in the country. Then apart from that, we are starting another medical journal on the medical education, which is again the official publication of Society of Clinical Anatomists. इसका जो टाइटल है द क्रॉनिकल्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन. सो दीज आर सम ऑफ द टेक्स्ट बुक्स और द जर्नल्स आई एम वर्किंग. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम एसोसिएटेड विद n numbers of international journals like Scientific Reports, you say, then BMC, so many journals are there. Then from the Russian Operative and Clinical Surgery. So then apart from that, Anatomical Sciences Education, as a reviewer, more than, you say, 30-40 journals I am associated. So my whole interest, you say, it is in academics, so I'm into it. वंडरफुल सर. मैं पिछले कुछ दिनों पे सर सोशल मीडिया पे देख रहा था सोकाकॉन के बारे में. आपके लिंक्डइन पे मैं आपको लगातार फॉलो करता रहता हूँ. सो मेरे सभी व्यूअर्स को बताइए सर सोकाकॉन के बारे में. बिल्कुल. सोकाकॉन, when I took the SOCACON conference, this is the annual meeting of Society of Clinical Anatomists. This was the World Congress of Clinical Anatomists. That time मैं उसी समय निम्स ज्वाइन किया था. एंड जब कोई नया नया किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करे और एक वर्ल्ड कांग्रेस होस्ट करे, इट वाज सिम्स टू बी इम्पॉसिबल. बट एज आई सेड कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ ऑलवेज अ वे. श्रीनगर में कॉन्फ्रेंस था, 13th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था श्रीनगर GMC में. मैंने वहाँ आउट ऑफ द वे आई ऑप्टेड. और मैं जानता नहीं था कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ हिस्ट्री, बिकॉज सोकाकॉन 2026 में अब तक का सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ किसी भी एनाटॉमिकल कॉन्फ्रेंस इन इंडिया. एंड 15 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए उस कॉन्फ्रेंस में. एंड ऑलमोस्ट ऑल द स्टालवर्ड्स ऑफ एनाटॉमी फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब पार्टिसिपेटेड इन दैट सोकाकॉन 2026. द बेस्ट थिंग जो मैं उस कॉन्फ्रेंस में कहूँगा, फर्स्ट ईयर MBBS के बच्चे, दे प्लेड अ वाइटल रोल इन ऑर्गेनाइजिंग दैट कॉन्फ्रेंस. ग्रेट. मतलब आप किसी कॉन्फ्रेंस में आप देखेंगे नहीं कि फर्स्ट ईयर के बच्चे इतने रिस्पॉन्सिबल, नॉट एक्टिव, इतने रिस्पॉन्सिबल, एंड दे वर ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग. ग्रेट. एंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल डेलीगेट्स who participated in SOCACON 2026, everyone appreciated our first year MBBS students. That was the best thing I liked. Great. कि कैसे आप अपने रिसोर्सेज को, अपने मैन पावर को, इवन दो जो बच्चे अभी जस्ट मेडिकल प्रोफेशन में इंटर किए हैं, इस लेवल का कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. एंड दे वर सो ओबीडियंट, सो हम्बल, एंड एवरी डेलीगेट्स एप्रिसिएटेड. We were blessed that our Chancellor, Dr. Balveer Singh Tomar, he supported us like anything.
and this was the best conference of anatomy India had seen till now. So I really feel blessed that God has been really kind to us. Right. We could इतने लोग participate कर पाए, Great. and it was a great academic fest for everyone. आपका नेक्स्ट इंटरनेशनल विजिट कहाँ है सर, और कब है, और किस सिलसिले में है? So अभी मुझे मेयो क्लिनिक जाना था, but because of some visa it is still in the process. But next मेरा अगस्त में ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में है IFA 2026, और उसके बाद ग्रीस पात्रा में भी मुझे इनवाइट किया गया है टू डिलीवर द गेस्ट लेक्चर. So these are the assignments you say in the different parts of the world. Right. So I love whoever invites me. I love to share our thoughts in the anatomical sciences. I enjoy teaching and training. ग्रेट, वंडरफुल सर. आपके साथ इस पूरी बातचीत में बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली. अब मैं चाहूँगा कि सर हमारे यंग मेडिकल डॉक्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आप गोल्डन वर्ड्स कहिए, आपका क्या एडवाइस है जो मेडिकल के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं या रखने वाले हैं बच्चे, मेरे नीट एस्पिरेंट्स, उन सब के लिए आपके गोल्डन वर्ड्स सर? बिल्कुल, मैं उन सभी लिसनर से, दर्शकों से कहना चाहूँगा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते. वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ ऑलवेज अ वे. वी इवन इफ वी आर नॉट very intelligent, it hardly matters. You should be hardworking, you should be consistent, you should be passionate, and with full dedication, you put your efforts, God will be kind and you will find the results. मुझे एक बड़ा अच्छा कोटेशन याद आता है. When you were born, you were crying, while all others around you celebrated the occasion with laughter and mirth. Live your life so nobly that at the time of your passing away, you smile over the world well lived life while others cry out of sorrow. कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप जन्म लिए थे, आप रो रहे थे और आपके चारों ओर लोग मुस्कुरा रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे. आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह से जियो कि जब आप दुनिया को छोड़ कर जाओ, आप मुस्कुराते हुए जाओ, अपनी अच्छी सी ज़िंदगी जीकर, और आपके जाने से सारी दुनिया रोए. Do something like that before you leave the world. So when you have come to this world, do something like that, so that even if you are not there in the world, people should remember your work, your creations, whatever you have contributed to the society. Great. मतलब there will be challenges. हमेशा लाइफ में कभी, as I said, कि life is not a bed of roses. You will come across so many challenges, but you face those challenges in a positive way, and those challenges are only there to make you a better individual. That is for your growth. Utilize it in a proper way. Don't get disheartened. Don't think that every time you will get success. There will be chances that you will come across the failures. But as many of you must have read, that the failures are the pillars of the success. So get motivated, right? And again you try, and you will get the success. God helps those who helps themselves. Right. So I always see things in a positive way, and that's what I expect from the people. Don't ever get disheartened. People will be there. You will come across a lot of obstacles. You will do some mistakes. There will be people who will doubt on your potentials. But with your hard work, with your passion, with your determination, only sky is the limit. There is no limit. Right. आपकी इसी बात से सर मुझे एक दोहा याद आ गया जो आपने अंग्रेजी में कही. जब हम आए जगत में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए. Exactly the same thing what I said in English, you said. So we should enjoy life, take it in a positive way, and we should contribute. That should be our motto. जाए तो कुछ कर जाए. मुझे याद आता है बचपन में मैं एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले रहा था किसी फॉर्म फिल करने के लिए. तो मेरे पिताजी के एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ करो कि लोग तुम्हारा फोटो लगाएं. तुम खुद फोटो खींच रहे हो तो क्या कर रहे हो. तो डू समथिंग लाइक दैट पीपल शुड हैव योर फोटोग्राफ इन ईच एंड एवरी ऑफिसेज और समथिंग लाइक दैट. बिल्कुल सर. तो सफलता वही है कि जब आपके सिग्नेचर आपका ऑटोग्राफ बन जाए. बिल्कुल. एंड वन मोर मैसेज आई वुड लाइक टू गिव वेरी क्लियर, that if you see, the most of the Nobel laureates are those whose mentors are Nobel laureates.
Right. So you must have a mentor, Hmm. right? Then, and those mentors play a vital role in बिल्कुल। guiding you in a proper direction Right. and showing the path. बिल्कुल सही कहा आपने। एक सच्चा गुरु जो है वो आपके जीवन में एक जीपीएस के रूप में काम करता है, जो आपको आने वाले पाथ को जो है और आसान बना देता है। कहाँ बिल्कुल। कहाँ मुश्किलें आनी है वो आपको पहले ही गाइड कर देता है। सो आपकी बहुत खुशकिस्मती रही सर इस चीज़ में कि आपको आपके जीवन में बहुत बेहतरीन मेंटर्स मिले बिल्कुल, बिल्कुल। और उस I चीज़ के feel लिए blessed. I feel blessed that we got such a nice Wonderful teachers who not only taught me the subject, but in every field Field they of guided me. ग्रेट सर। थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे मंच पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ये खुशनसीबी है कि आप आए और आपने मेरे स्टूडेंट्स को इतने बेहतरीन तरीके से मेंटर करा। Thank you so much, sir, for inviting me. My I really pleasure, feel blessed and honored with your conversing with you. Thank you. Thank you so much. थैंक यू। Thank you. और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर डॉक्टर कुमार सतीश रवि से यदि आप पर्सनली कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं इन जनरल, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो जीवन में आ रही किसी भी परेशानी से रिलेटेड हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सर से जुड़ने के लिए सभी सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। सर से आप उनके लिंक्डइन पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर सर का ईमेल आईडी भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। Thank you so much.